نواز شریف کی سچویشن ہے. بار بار سٹریس کر رہا ہوں, خدا نخواستہ نواز شریف کی صحت مزید بگڑتی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری جو ہے ان حکمرانوں پہ اوپر ہے. ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. باہر جانے کے حوالے سے یہ فیصلہ میاں نواز شریف اکیلے کریں. آزادی مارچ کا جو اسکیڈول ہے وہ اسی طرح ہی قائم اور دائم ہے جس طرح 2 روز یا 4 روز قبل تھا, اور اس کو میاں نواز شریف صاحب کی مکمل جو بلیسنگز ہیں اور جو مکمل ان کی آشیرواد حاصل ہے, اور پارٹی جو ہے اس پہ مکمل طور پہ عمل کرے گی. میاں صاحب کی صحت یابی کے لیے جو انیشیٹو لے رہے ہیں, ہمارا کام ہے دستیاب وسائل میں ان کو ہر طرح سے بہترین سہولتیں دینا, اور اگر ان کے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے تو اس کے بعد اس پہ ایک میکانزم اور لائے عمل کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی صحت کا, جس کے حوالے سے پریشان کن خبریں سامنے آ رہی ہیں. 3 روز ہوئے وہ سروسز ہسپتال میں ہاسپٹلائزڈ ہیں, اور آج بھی خبر یہی آئی کہ ان کی جو پلیٹلیٹس تھے جن میں تھوڑی سی ہم نے امپروومنٹ دیکھی تھی, پھر کمی آنا شروع ہو گئی ہے. سینئر پارٹی رہنما جو ہیں ان کے مطابق نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے وہ تشویشناک ہے, اور اگر ان کی حالت مزید بگڑی اور خراب ہوئی تو جو جماعت ہے وہ اس کا ذمہ دار حکمران حکومت کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہرائے گی. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے, وہ پریس ٹاک انہوں نے آج کی, کہ اگر بیرون ملک علاج کی ضرورت ہوئی تو اس کا فیصلہ نواز شریف صاحب خود ہی کریں گے, اور پارٹی جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی. خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کی بیماری کے باوجود جماعت جو ہے وہ آزادی مارچ کے اندر حصہ لینے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ آزادی مارچ کا جو اسکیڈول ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسری جانب نواز شریف صاحب کے جو لائرز ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست جمع کروا دی ہے ضمانت کے لیے, ان کی جو صحت ہے خراب ہے اس کی بیسس پہ, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر بیرون ملک جانے کی ضرورت پڑی تو اس کی بھی بات کی ہے اپیل میں. حکومت کی طرف سے بھی اب کوئی کسی قسم کی لگتا ہے کہ ریزسٹنس نہیں ہوگی اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آیا عدالت کی طرف سے. وزراء جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت نے اجازت دی اور نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے باہر جانا پڑا تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے آج نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے. اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب, جو سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وفاقی وزیر. ویلکم ٹو دا شو بلوچ صاحب. جی سر, تو اس وقت کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں آپ کے پاس نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ میڈیا پہ تو ہم یہی سن رہے تھے کہ شاید پلیٹلیٹس جو ہیں ان کے وہ دوبارہ ان کے اندر کمی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ, سب سے پہلے تو میرے خیال میں پوری قوم کو دعا کرنا چاہیے کہ رب پاک نواز شریف صاحب کو صحت دے, اور یہ تشویشناک خبریں یہ جتنی جلدی یہ ختم ہو جائیں تو اتنا بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سپوکس پرسن ہے ہمارے عطا اللہ تارڑ صاحب, تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے یہ تشویشناک خبر دی کہ پلیٹلیٹس کی تعداد جبھی جا کے 6000 پہ پہنچی ہے, ریکوائرمنٹ 1.5 لاکھ تک کی ہے. اور رات کو اچھی خبر یہ تھی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ تشخیص کی گئی ہے اور علاج کے بارے میں پتہ چلا ہے اور علاج اس کی شروع کی جائے گی. ابھی ڈاکٹرز زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا سیریس ہے, کتنا سنجیدہ ہے. جہاں تک پنجاب کے ہیلتھ منسٹر کا صاحبہ کا تعلق ہے, انہوں نے تو اچھی خبر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی امید ہے کہ انشاءاللہ ٹریٹمنٹ ان کی ہوگی, امپرومنٹ 1-2 دن کے اندر نظر آئے گی. لیکن دوسری طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے خبر دی عطا اللہ تارڑ صاحب نے, اس نے پوری قوم سے اپیل کی ہے کہ دعا کریں کہ رب پاک میاں صاحب کو صحت دے اور اس کی صحت میں بہتری آ جائے اور وہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ
इतना अरसा ये इस किस्म की बीमारियाँ इस सूरत में अस्पताल में नहीं पहुंचाई जाती हैं कि वो लास्ट लिमिट पे पहुंचे और फिर वो अस्पताल में पहुंच जाएं और उसके बाद फिर दुआओं की स्टेज आ जाए और सीरियसनेस इतना हो। चाहिए तो ये था कि उनको बहुत पहले अस्पताल में शिफ्ट किया जाता, ट्रीटमेंट उसकी वक्त पे हो जाती, तशखीस उसकी वक्त पे हो जाती, तो ये दिन हमें देखने न पड़ते। अब्दुल कादिर बलोच साहब, तो क्या जमात के अंदर आप लोगों को कुछ पहले से इत्तलात आ रही थी, क्योंकि उनके डॉक्टर भी कुछ कहते रहे इस तरह के कि उनकी तबीयत जो थी वो काफी अरसे से खराब हो रही थी? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जो देख रहे हैं या जो जिनको सिर्फ मीडिया से इत्तलात मिल रही हैं उनको तो यही लग रहा है कि जैसे एकदम ये मसला हुआ और एकदम उनकी तबीयत खराब हुई। आरिफा, आप भी मेरे ख्याल में ज्यादती कर रही हैं। न सिर्फ हमें पता था बल्कि पूरी कौम को पता था, मीडिया के थ्रू खबरें आ रही थी कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको अस्पताल में शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट है, और उधर से वज़ीर इत्तलात साहबा की बातें आ रही थी कि जी ये तो बिल्कुल अपनी जान छुड़ाने के लिए और अय्याशी करने के लिए और एसीज़ और सहूलतों को अवेल करने के लिए उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि यहाँ तक बयान दिया गया है जब वो अस्पताल पहुँचे तो उन्होंने कहा जी ये तो गलत बात है, वो बीमार नहीं है, बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे थे। यानी वो चाहते थे कि मियाँ साहब रोना धोना शुरू कर दें, उसको फिर बीमारी वो गर्दान थे। मकसद है ये बातें तो सबको पता थी और रोज़ाना खबरें आ रही थी, ये डिमांड हमारी पार्टी की तरफ से आ रही थी, सब कुछ था, लेकिन हुकूमत टस से बस नहीं हो रही। सर, मैं असल में बात कर रही थी तबीयत तो नवाज शरीफ साहब की पहले भी खराब हुई, वो गए, जो ये अभी प्लेटलेट्स गिरे हैं और जो नई बीमारी उनको लग रहा है कि जो डायग्नोज भी हुई है, ऑटो इम्यून की कुछ लोग बात करें, मैं उस हवाले से बात कर रही थी कि वो क्या पिछले कुछ दिनों के अंदर ही मतलब कि ये सिम्टम सामने आए हैं या इससे पहले भी जब वो अपने चेकअप अपने डॉक्टर से करवाते थे या उनके डॉक्टर्स उनको चेक करते थे तो कोई खदशात थे कि इस तरह की चीज डेवलप हो रही है? आरिफा, बुनियादी तौर पर ये प्लेटलेट्स वाली कहानी, ये तो हर एक डॉक्टर को इसके बारे में पता नहीं होता है। ये जब टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, वहाँ पर जाके पता चलता है, और यहाँ पर ला के जब उनको टेस्ट किया गया तब पता चला उनका ये प्रॉब्लम था। लेकिन वो तकलीफ में थे, बीमारी उनकी थी और इंसिस्टेंस की जा रही थी उनके डॉक्टर की तरफ से कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए और उनकी ट्रीटमेंट सही तौर पर की जाए, उनके टेस्ट किए जाएं। अभी एक लेमैन को और एक जनरल ड्यूटी डॉक्टर को इन चीज़ों का पता नहीं होता है, हालांकि उनका ज़ाती मुआलिज उनसे मुलाकात करता था, लेकिन बगैर टेस्ट के इन चीज़ों का पता नहीं चल सकता था। अब्दुल कादिर बलोच साहब, और इसी हवाले से जो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि ये अगर बाहर जाना हुआ तो ये नवाज शरीफ साहब का अपना फैसला होगा, पार्टी कोई जोर नहीं डालेगी या उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी, तो इसकी क्या लॉजिक है? क्या अगर इस वक्त जरूरत है मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर इलाज करवाने की तो क्या हर्ज है अगर जमात वाले भी उनसे कहें कि वो इसको कंसिडर करें इस ऑप्शन को? देखें जी, बात यह है कि मियां साहब ने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर का बयान था कि उन्होंने कहा वो बहुत खुश हैं इन डॉक्टरों से जो उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनकी सेटिस्फेक्शन है। और मुसीबत यह है कि वो इस वक्त उनकी बीमारी का मसला है, बाहर अगर वो चले जाते हैं तो यकदम पर हुकूमत वालों ने खबर लगा देनी है कि जी यहाँ फ़लान चीज़ से बचने के लिए और ये भाग गए तो ये हुआ तो फ़लान हुआ फ़लान हुआ। ये बेसिकली मियाँ साहब ने फैसला करना है होश हवास में, अल्लाह ताला के फजल व करम से रब पाक उनकी सेहत बरकरार रखे, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल सही बात की है, ये हमारे पार्टी के कायद हैं, बुनियादी तौर पर वो इसके रिपरकशन, इसके प्रोज और कॉन्स वो जानते हैं कि क्या फ़ैसला करना है। मेरी राय मेरे ख्याल में इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना पार्टी के किसी मेंबर की राय इतनी इम्पॉर्टेंट है, उनके ज़ात का मसला है वो। बिल्कुल सही। अगर तो सर जो उनके लीगल टीम ने इस वक्त अपील डाली है बेल के लिए और साथ में उन्होंने बाहर मुल्क इलाज की भी बात की है, तो ये लॉयर्स ने खुद से तो नहीं किया होगा, या तो उन्होंने मियां साहब से बात की होगी नवाज शरीफ साहब से पहले या उनके घर वालों से बात की है। तो कुछ इसमें आपको मालूम है कि उन्होंने किससे कंसल्ट करके फिर ये बीच अपील के अंदर ये भी डाला है कि उनको अगर जरूरत पड़े तो इजाजत दें कि वो मुल्क से बाहर जाके इलाज करवा सकें? देखें तशवीशनाक तो उनकी सेहत की तशवीशनाकी के ऊपर तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अभी ये फैसला करना बुनियादी तौर पर इनका काम नहीं है, डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस करनी है
کہ کہاں پر ٹریٹمنٹ ان کی صحیح کی جا سکتی ہے. یہاں پر ہے تو میاں صاحب کوئی ایسی کبھی بھی اس نے خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں اور کوئی قصے کہانی ان کے پیچھے بن جائے. لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے ان کی صحت کے لیے, ان کی جان کے بچانے کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہے تو وہ ضرور ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے اوپر میرے خیال میں وہ عمل کریں گے اگر اس قسم کی ایڈوائس آ جاتی ہے اور معاملہ اتنا سنجیدہ ہو جاتا ہے. اور سر اسی حوالے سے جو آزادی مارچ ہے اس کے سکیڈول پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میاں صاحب کی طبیعت بہتر ہوتی ہے, بیل ملتی ہے, نہیں ملتی, یہ مطلب کہ بالکل ایک سیپریٹ جس کو ہم کہتے ہیں جماعت کا فیصلہ ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی صحت کا اس کا کسی قسم کا کوئی اس پہ اثر نہیں پڑے گا؟ کین وی سے دیٹ؟ رب پاک میاں صاحب کو اپنے امان و پناہ میں رکھے. جہاں تک میاں صاحب کی فزیکل پارٹیسپیشن کا تعلق تھا اس کا اس آزادی مارچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ آلریڈی جیل میں تھے اور جیل سے باہر آ کے کوئی پارٹیسپیشن ان کی نہیں ہونی تھی. ان کی ہدایت پارٹی کو ہے کہ پارٹی مکمل طور پر اس ایفرٹ کو سپورٹ کرے اور بنیادی طور پر یہ مارچ ہے JUIF کی, مولانا فضل الرحمان کی. ہماری پارٹی کو ہدایت ہے میاں صاحب کی طرف سے, ہماری پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کے شیڈول میں فرق ڈالنا, دائیں کرنا, بائیں کرنا, میرے خیال میں بیماری کی وجہ سے کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. رب پاک ان کو اپنے امان و پناہ میں رکھے, اللہ کرے ان کو کچھ بھی نہ ہو اور ہمیں اللہ سے امید بھی ہے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو کارروائی ہے, یہ مارچ والی کارروائی چلتی رہے گی جیسے مولانا صاحب نے اس کو پلان کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پاکستان کی ایز آف بزنس کے حوالے سے اس کے جو رینکنگ ہے اس میں فرق پڑا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اکانومی کا, جو آج کل ہمارا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے. اور اب جو لیٹسٹ اطلاع آئی ہے جس کو حکومت بہت سیلیبریٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بہت اچھی خبر ہے, اور وہ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے. ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس 2020 کی, وہ آج جاری کر دی گئی ہے اور اسی حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی رینکنگ ہے وہ 136 سے بہتر ہو کے 108 پہ پہنچ گئی ہے. یعنی کہ ایک سال کے اندر 28 درجے جو ہیں ویو جمپڈ اپ. اور اصلاحات کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان کا جو ذکر ہے وہ ٹاپ 10 ممالک کی میں آ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اپنا مینیفیسٹو, الیکشن مینیفیسٹو کے حوالے سے اپنے وعدے جو ہے قوم سے وہ پوری کر رہی ہے. مگر کیا سچ مچ سرمایہ کاری بڑھی ہے پاکستان کے اندر؟ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس سے رینکنگ بہتر ہوئی ہے. از فارن انویسٹمنٹ, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فالوئنگ؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود رابط سلیری صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے STPI کے, اور ڈاکٹر شمائل داؤد جو ماہر معاشیات ہے. So with two doctors, I'm going to ask a very dumb question. وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی حکومت تھی تو ہر دوسرے دن نا ایک انٹرنیشنل جو کوئی سروے ہوتا تھا یا کوئی رینکنگ ہوتی تھی وہ ہمیں سنائی جاتی تھی. یہاں تک کہ اسحاق ڈار صاحب کو تو بیسٹ فائنانس منسٹر کا بھی کسی نے ایوارڈ دے دیا تھا. تو اب اسی طرح یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, یہ جو رینکنگ میں امپروومنٹ آئی ہے, ڈاکٹر رابط سلیری آپ سے شروع کروں گی. How much is it a cause for celebration? To some extent perhaps it is, لیکن اس کے بعد آگے کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. اگر ہم کہیں کہ what is that extent, تو میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ پتہ چل گیا جن چیزوں پہ رینکنگ امپروو ہوئی ہے اس سے 3 بنیادی لیسنز ہمیں مل رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ ہیومن انٹرونشن ختم کر دیں اور ٹیکنالوجی پہ فوکس کریں تو بہت سے وہ جو سرخ فیتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. تو بہت سی جو تھی آبسٹرکشنز ان ڈوئنگ بزنس وہ ہماری سیلف کریٹڈ ہے, اور وہ بنیادی طور پہ آپ کے جو کانٹیکٹس جہاں پہ انوالو ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے آ رہا تھا. تو ٹیکنالوجی کا استعمال. دوسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو ریونیو لاس کیے بغیر سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے. اور آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو ہارون شریف ہیئر کہ انہوں نے 43 قسم کے ٹیکسز تھے جن کو 10 ٹیکسز پہ مرج کر دیا تھا اور وہ ان کی پیمنٹ بھی آن لائن کر دی تھی.
एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द स्टेप्स. आपका रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, लेकिन लोगों को यानी टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को मल्टीपल टैक्स देने में और मल्टीपल रिटर्न्स जमा करवाने में प्रॉब्लम है. और तीसरी इसमें जो चीज़ थी वो ये थी कि ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को सिक्योरिटी कंसर्न के नाम पे ब्लॉक कर दें. इसमें जो कंस्ट्रक्शन परमिट थे वो ऑनलाइन कर दिए गए लाहौर और कराची में. आप सिंपल उस पर पोर्टल पे जाएं, जाके अपना डाटा जो फीड इन करें, 4 घंटे के बाद आपको कंस्ट्रक्शन परमिट मिल जाएगा. तो अदरवाइज वो सारे कंस्ट्रक्शन परमिट्स के लिए फ्ला एजेंसी में जाएं, प्लान डिपार्टमेंट में जाएं, उसका तो ये हमारे अपने दिमाग में है जो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जो रोड ब्लॉक्स हैं. अगर हम इस साइकी से निजात पा सकें तो आई थिंक कि पाकिस्तान में बिजनेस करना काफी आसान हो सकता है. डॉक्टर शुमाइल दाऊद, अब आपसे कि अब व्हाट नेक्स्ट, और क्या करने की जरूरत है इसी हवाले से? जिस तरह डॉक्टर साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि ये एक स्नैपशॉट है, और चूंकि ये तमाम दुनिया के 190 मुल्कों के अंदर इसका एक मुवाजना होता है, और जो सबसे बेहतर मुल्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उसकी यानी कि उसकी मुनासबत से हम इन सबको जांच रहे होते हैं. तो ये एक स्नैपशॉट है जो कि कुछ पैरामीटर्स को जांचता है कि आपकी इकोनॉमी में वो कैसे इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं. जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि उसमें प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश की हारून शरीफ साहब ने, BOI ने, गवर्नमेंट ने, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि इसको खुद स्टीयर किया इस सारे मामलात को, तो उसमें बड़ी एक तेजी भी आई और बहुत तेजी से. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस पे काम होता रहा है. तो एक अच्छी बात यह है कि उस पे बिल्ड अपॉन हुआ है. गुज़िश्ता से आपका मतलब ये है कि पिछली हुकूमत ने भी काम किया, और उसके बाद अब इन्होंने अच्छा बिल्डअप किया. सो ये अच्छी चीज है, और इसमें डेफिनेटली जितनी भी आसानियां होंगी उससे बेनिफिट आएगा. अब आपका सवाल जो इंट्रो में था वो ये था कि क्या इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या इजाफा हो रहा है. इस वक्त तो राइट अवे जहां पे हम देख रहे हैं, इस वक्त सितंबर का जो महीना हमारा गुजरा है, उस वक्त तो हम देखें तो अच्छी खुशखबरी थी कि हमारी कुछ रिलेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस रही है. लेकिन क्या इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, और क्या ये एक कह लें तसलसल इसमें कायम रहेगा, ये वक्त के साथ ही सामने आएगा. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बेतहाशा काम होना बाकी है, क्योंकि मैंने जिस तरह जिक्र किया एक स्नैपशॉट है, और ये दूसरी बात है कि 2 शहरों को ये फोकस करता है इस पाकिस्तान के हवाले से, कराची और लाहौर. तो डेफिनेटली इसमें बहुत से ऐसे शोबे हैं, बहुत से सेक्टर्स हैं जो शायद इसके अंदर रिप्रेजेंट ना हो. सही. नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर आबिद सुलेरी और डॉक्टर शुमाइल दाऊद के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. हम गुफ्तगू करें डॉक्टर आबिद सुलेरी से और डॉक्टर शुमाइल दाऊद से, और हम बात करें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हुई है. ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुमाइल दाऊद कह रहे थे कि अब हमें वक्त बताएगा. तो इफ़ आई कैन जस्ट आस्क कि लुकिंग फॉरवर्ड के किन चीज़ों पे हमें नज़र रखनी चाहिए टू सी वेदर वी आर इम्प्रूविंग फर्दर, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी फिर इम्पैक्ट ज़्यादा कर सकते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका वेटेज को 15 से 20% है. अभी जिन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जिनको मीट करवाना. तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से मीट होते हैं, आर्बिट्रेशन जो है वो कैसे होती है, उसके अलावा आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट की जाती है. तो ये चीज़ें जो हैं ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इन पे भी काम करने की ज़रूरत है. डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो हैं वो हमारे कैसे होते हैं, और ये शोबे अभी खासे वीक हैं. तो जब आपके इन्वेस्टर जो हैं जब वो डिसाइड करते हैं किसी मुल्क में आने या ना आना, तो यस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन उसके बाद फिर वो देखते हैं कि अगर मैं डॉक्टर शुमाइल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो इसको क्या मैं इम्प्लीमेंट करवा सकूंगा कि नहीं. अगर हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो स्टे ऑर्डर, तो हमारा अभी तक अदालती सिस्टम में स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर चलते जाते हैं, और वो चीज़ें जो है वो लटकती रहती है, स्पेशली दीवानी मुकदमात में. एंड दिस इज समथिंग जो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अफेक्ट करती है. इवन सीपैक तक के जो बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे भी जो हमारी कोर्ट्स की तरफ से बाज़ ऑब्जर्वेशन ऐसी थी जिसकी वजह से चाइनीज जो थे वो अच्छा खासा डर गए थे. तो डॉक्टर शुमाइल दाऊद, अगर यही बात जो डॉक्टर आबिद सुलेरी कह रहे हैं, सो आर वी टॉकिंग अबाउट कि हमें अब कानून साजी करने की जरूरत है, या थोड़ा सा वो जो एक जिसको हम कहते हैं ना माइंडसेट का एक इशू है और कमिटमेंट का इशू है, कि एक तो वही जैसे
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत गई तो पीटीआई ने शुरू कर दिया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट गलत था, इसमें भी पैसे खाए गए, ये वो. सो व्हाट आई मीन लेजिस्लेशन या वी नीड टू चेंज आवर कल्चर एंड यू नो माइंडसेट. अगर हम इन्हीं टूल्स को ही लेते हैं तो जिस तरह अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके अंदर वो हर्डल्स जिसमें स्पीडीली टाइमली कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्फोर्समेंट होना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स का इजरा होना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अगर कहीं आ जाता है तो वो जल्दी उसकी रेजोल्यूशन हो जाना, स्पेशल कोर्ट्स, लेकिन एक्चुअली स्पीडीली उनके ट्रायल्स होना, ये नहीं कि वो लिंगर ऑन हो. तो ये इनके अंदर फिर जो प्रोसीजरल चीजें हैं वहां पे फिर जिस तरह शुरू में जिक्र हुआ कि टेक्नोलॉजी की मदद से कि जब जितनी जगह पर एक्चुअली अभी भी जितनी जगह पे हमने नंबर्स इंप्रूव किए हैं उसमें टेक्नोलॉजी की मदद से हुए हैं. जिस तरह अभी जिक्र किया कि टैक्सेशन पे आप कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे या कोर्ट्स को. पहली बात ये कि मॉडल कोर्ट्स और ई कोर्ट्स आ गए हैं, ई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है. सही. तो एक तो ये, दूसरा मैं जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि एक तो यही इंप्रेशन है जिस तरह इन्होंने भी अभी बताया कि 15% वाला एक बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि इस रीजन के अंदर जिस तरह हमने बड़ी परफॉर्मेंस इंप्रूव की, इस तरह इंडिया ने भी उनकी भी इंप्रूव हुई और वो तो रैंकिंग हमसे बेहतर है. इस रीजन में टॉप परफॉर्मर और वो 50 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे. अब जहां पर वो इस वक्त खड़े हैं 63 गालिबन उनकी इस वक्त है, इसके मुकाबले में मैं वैसे ही देख रहा था रिपोर्ट के अंदर तो कीनिया ने इंप्रूव किया है, कीनिया ने भी, लेकिन कीनिया इनसे बेहतर है इंडिया के मुकाबले में. कीनिया इज अ डिफरेंट कंट्री इन अ डिफरेंट रीजन, लेकिन वैसे अगर उसकी इकोनॉमी के साइज को देखें, उसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखें तो इंडिया के मुकाबले में कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का. सो गोया ये कि जो आपकी इकोनॉमी का खुद एक फुटप्रिंट है उसकी भी अहमियत है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली एक ऑप्टिक्स की जरूर एक निशानदेही करता है एक फैसला करने में या फैसला साजी में, लेकिन वो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं एक तो वो कोरिलेशन उसके साथ होना जरूरी है. तो कोई भी शख्स या कोई भी कंपनी या कोई भी बाहर से बहुत बड़ा कोई कंग्लोमरेट पाकिस्तान जैसी अगर जगह पे आते हैं तो इसको जरूर देखेंगे वो, लेकिन उसके साथ साथ वो यहाँ का माहौल देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखेंगे, लेबर लॉज देखेंगे या लेबर की यानी तरसील या उनकी अवेलेबिलिटी देखेंगे. तो ये फैक्टर्स बहुत काम मतलब उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे. 15 to 20% ये हो गया. बेसिकली 80% के अंदर अगर आपने हुकूमत को कहना है कि अगले साल के अंदर, जैसे अगर हारून शरीफ साहब ने ये किया और साल के बाद हमें इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है, तो 3 things that the government should focus on in the coming year. And now you both have about half a minute each. Contract enforcement is very important. How will that be done? That should be done by binding. आपके पास देखिए इस वक्त मैं और आप अगर हम किसी जगह पे अपार्टमेंट लेने के लिए अपने ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज, 10 साल के अरसे में तो आपको वो अपार्टमेंट कंप्लीट होकर नहीं मिलता. आपके पास लिखा होता है कि अच्छा जी 3 सालों में आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, चौथे साल आपके पास चाबी होगी, लेकिन क्या कभी किसी अदालत में इसको चैलेंज किया जा सकता है? नहीं होता है. तो कंट्रैक्ट एनफोर्समेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और उस पर डेफिनेटली अदालतों को एक्टिव होना पड़ेगा. और सेकंड डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड स्पीडी डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये 2 चीजें अगर हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्वेस्टमेंट को खतरा है. यहाँ डॉक्टर शुमाइल दाऊद, ये आई थिंक इसके अंदर सबसे अहम चीज जो है कि जो इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता वो पिरामिड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, उसके लिए आसानी पैदा करना. ये कुछ आसानियां तो हैं जो यानी कि डॉक्यूमेंटेड लोगों को हैं, एक तो डॉक्यूमेंटेड को लाना, लेकिन फिर उनके लिए आसानी पैदा करना क्योंकि वो हमारे पूरे इस पिरामिड का यानी पूरी इकोनॉमी को चलाने के नीचे जो बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो उनका है, तो उनको किसी तरीके से फायदा पहुंचाना. दूसरा एक्सेस टू कैपिटल यानी कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी. कहने को तो क्रेडिट अवेलेबल है, अब तो खैर महंगा ही हो गया, लेकिन उसकी आसानी से तरसील होना कि लोग आसानी कर सकें. तो इवन अगर वो अवेलेबल भी हो तो बाद औकात लोग लेना भी चाहें तो वो उनको एक्सेस नहीं मिलता क्योंकि उसमें बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं. ऑल्दो ये उसका हिस्सा है, लेकिन ये 2 अगर पैरामीटर्स हों विद इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आई थिंक उससे वाकई ही ग्राउंड रियलिटीज के अंदर बहुत तब्दीली आ सकती है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर आबिद सुलेरी, डॉक्टर शुमाइल दाऊद. और नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद के अंदर प्राइवेट हॉस्टल्स बंद किए जा रहे हैं. स्टे विद अस.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इस्लामाबाद के अंदर जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ताज़ा तरीन ऑपरेशन है, जिसमें वो जो प्राइवेट हॉस्टल्स थे इस्लामाबाद के अंदर, ख़ास तौर पे E11 के अंदर, वो ख़त्म किए जा रहे हैं और उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है और वो शिकायत भी कर रहे हैं कि अगर प्राइवेट हॉस्टल्स में नहीं रहेंगे, यूनिवर्सिटी के पास अकोमोडेशन इतनी है नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ जो CDA का मौक़िफ़ है वो ये है कि ये एक कोर्ट ऑर्डर था, वो इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये उनका कोई अथॉरिटी का अपना फैसला नहीं है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवीद सिद्दीकी साहब, जो नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ के। वेलकम टू द शो नवीद साहब। नवीद साहब, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके नीचे वो प्राइवेट हॉस्टल्स जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, तो जब ये हॉस्टल्स बन रहे थे इस्लामाबाद में, अगर उनकी गुंजाइश नहीं थी कानून के नीचे, तो तब CDA ने इनको क्यों नहीं रोका बनने से? 1960 में एक CDA का ऑर्डिनेंस आया था और डॉक्स आइडिस ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बनाया था। उस मास्टर प्लान के तहत हॉस्पिटल्स, घर, कमर्शियल प्लाजाज, हॉस्टल्स और तमाम जितनी भी चीज़ें थीं उसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़, तालीमी इदारे, हर चीज़ के लिए एक मैकेनिज़्म बना दिया गया था, एक प्लानिंग और एक मैप बना दिया गया था और उसी के तहत तमाम जगहों पे ये चीज़ें हर किसी को अपने प्लॉट्स अलॉट कर दिए गए थे। मगर सूरत हाल ये कि CDA की मिली भगत से, क्योंकि सब लोगों को तो प्लॉट्स मिले नहीं और रेजिडेंशियल एरियाज़ में किराए बहुत कम थे, जिसकी वजह से लोगों ने घरों में ही हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेज, ब्यूटी पार्लर्स, कमर्शियल ऑफिसेज। और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उनका नॉन कंफॉर्मिंग यूज वाले सब जो जाती या रेजिडेंशियल एरियाज में घर है उनको खाली किया जाए। मगर हॉस्टल्स को तो एक एक्सेप्शन मिलनी चाहिए किसी तरीके से। क्या जो CDA है और जो अदालतें हैं या हुकूमत है वो देख नहीं रहे कि स्टूडेंट्स के क्या मसाइल हैं और उनको भी कोई कहीं तो रहने की जगह मिलनी है? अगर यूनिवर्सिटी में नहीं है अकोमोडेशन काफ़ी और मगर वो दाखला तो दे रहे हैं, तो फिर ये मसला कौन हल करेगा? जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का फैसला है कि नॉन कन्फॉर्मिंग यूज जितने भी हैं रेजिडेंशियल एरियाज में कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएं और उसमें सिर्फ एग्जेम्पशन दी गई थी प्राइवेट स्कूल्स को। हालांकि उन्हें करोड़ों रुपए की कीमती प्लॉट्स H8 में और H9 में मिल चुके हैं और मुख्तलिफ जगहों पे, उसके बावजूद वो रेजिडेंशियल एरियाज में वो ऑपरेट कर रहे थे और बड़े बड़े चेन्स हैं, वो काफी इन्फ्लुएंशियल थे, उन्हें तो एग्जेम्पशन मिल गई। मगर हॉस्टल्स और ब्यूटी पार्लर्स या ऐसी चीजें थी वो सब बात करें ना, ब्यूटी पार्लर्स में तो कोई ह्यूमन राइट्स की हमें नहीं। बिल्कुल, हॉस्टल्स का ये हुआ कि हॉस्टल्स के खिलाफ भी एक्शन लिया गया और हॉस्टल वाले ऐसे उन्होंने फिर अपने तमाम जो बिजनेसेस हैं वो शिफ्ट कर दिए। E11 एक सेक्टर है, सेक्टर तो नहीं है, वो एक हाउसिंग सोसाइटी है मगर एक सेक्टर हो गया, डेवलप सेक्टर बन गया है। उसके बाद CDA ने वहां भी इम्प्लीमेंटेशन अपनी जुरिसडिक्शन एक्सटेंड की और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट किए और वहां पर हॉस्टल्स के खिलाफ एक्शन लिया और सील कर दिया। मगर उसका अब डेवलपमेंट ये है आज की कि CDA ने उन्हें 1 माह की डेडलाइन दी है कि अपना बंदोबस्त कर लें हॉस्टल ऑनर्स को, कि अपना बिजनेस जो है कमर्शियल एरियाज में शिफ्ट कर दें और वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये समझाएं कि हॉस्टल्स जो हैं, क्योंकि वहां लोगों ने रहना है, बच्चों ने रहना है, तालिब इल्मों ने रहना है, वो कैसे कमर्शियल एरिया में शिफ्ट हो सकते हैं? देखिए ये कोई दुकान तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, ये जिम्मेदारी थी यूनिवर्सिटीज की, जामियात की, कॉलेजेस की, स्कूल्स की, कि जो कि अगर उन्हें NOC HEC देते हैं या फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो वो इंश्योर करना चाहिए, चाहे प्राइवेट हैं चाहे पब्लिक हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए कि आप लोग उसमें जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो लाजमी प्रोवाइड करें। वो प्रोवाइड नहीं की गई। इसके अलावा अगर हॉस्टल की तादाद देखें, गवर्नमेंट वर्किंग खवातीन के लिए जो है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या उसके लिए, उसमें सिर्फ इस्लामाबाद में 3 हॉस्टल्स हैं। उसमें अगर देखा जाए तो ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए 250 से 300। अब उसमें 500 से लेके 600 जो खवातीन हैं वो बड़ी बदतर हालत में रह रही। गवर्नमेंट सेक्टर का ये हाल है, तो प्राइवेट तो बिल्कुल एक एक घर में, एक एक 4 कमरों में स्कूल्स खुले हुए हैं, मकानात खुले हैं, ऐसी ऐसी छोटे छोटे घरों में जामियात खुल गई, सब कैंपसेस। तो उनके पास अपनी एकेडमिक्स के लिए, जो डेली के क्लासेस के लिए उनके क्लासरूम्स नहीं है, तो हॉस्टल्स तो दूर की बात है। ये जो हॉस्टल्स हैं जो बंद किए जा रहे हैं, इनके अंदर जो तालिब इल्म रहते हैं, ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज के भी बच्चे हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी बच्चे हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि कायदे आजम के या जो गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटीज हैं सिर्फ उनके तालिब इल्म नहीं है। जी देखें, अगर देखा जाए तो बड़ी जो जामियात हैं, 2 कायदे आजम यूनिवर्सिटी है और इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहां पे जो हॉस्टल
हॉस्टल्स आज से 20 साल पहले 30 साल पहले बने थे वो वही हैं, उनकी एक्सपेंशन नहीं हुई। हालांकि इनके पास 750 एकड़ पर मुहित एक पूरा सेक्टर है, मगर उन्होंने एक्सपेंशन नहीं की। और ज़ाहिर है अब उसमें क्लासेस ज़्यादा हो गई हैं, फैकल्टीज बढ़ गई हैं, मुख्तलिफ डिसिप्लिन में लोग आते हैं, और शहर से बाहर इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। वहाँ पर इस्लामाबाद के लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं। अब हॉस्टल में जब जगह ना मिले तो वो लाजमी वो कहीं ना कहीं जाके प्राइवेट हॉस्टल में अपने करेंगे, और जब वो अब उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, या वो अपने घर जा नहीं सकते, यूनिवर्सिटीज में भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी, और जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इस पे गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।